Good morning, class. Today in BST we will start the 8th unit. Only one chapter is there in this unit. The name of this unit is controlling. As you know, we discussed the functions of management, and this controlling is the last function of your management. So firstly, the meaning of controlling. Firstly, the meaning of control. Control means you have to achieve the desired object. जो आपने अपना ऑब्जेक्ट सेट किया था, एक्चुअली प्लानिंग में जो हमने सेट किया था वो अचीव हुआ है सक्सेसफुली या नहीं, ये सब कुछ हम जज करने के लिए करते हैं कंट्रोलिंग. सो इन कंट्रोलिंग वी विल कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस. डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस मीन्स जो हमने सेट की थी इन प्लानिंग कि हमें इतना अटेन करना है ऑब्जेक्ट, एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ कि जो एक्चुअली पूरे साल वर्किंग करने के बाद हमने अचीव किया, दैट इज़ द एक्चुअल परफॉर्मेंस. सो इन कंट्रोलिंग वी हैव टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल एंड द डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस. If there is a difference between the actual and desired, then that difference is known as the deviation, and we have to find out the reasons just behind the deviations कि ये जो difference आया है एक्चुअल और डिज़ायर्ड के बीच में वो किस रीज़न की वजह से आया है. यू हैव टू फाइंड आउट दिस इन द कंट्रोलिंग. सो दिस इज़ द मीनिंग. एज पर द डेफिनेशन, एज पर द फिलिप कोटलर, control is the process of taking steps to bring actual results and desired results close together. कि जो हमारे एक्चुअल और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हम कंट्रोलिंग में फाइंड आउट करते हैं और उन रिजल्ट्स में जो उनके बीच में डिफरेंस है उसको कम करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक्स features of controlling. In the features we have the first one, controlling is a fundamental management function. As I said in the beginning, this controlling is the last function of the management, so it is the last but not the least. Again, it is an important function of your management. Second is pervasive function. Pervasive means this controlling is applicable allwhere. It's not only in your business, whether you are doing business or non-business activity. At every stage, at every point of level, at every level of management, you need proper controlling. The next is controlling is a continuous process. It is a continuous process. जैसे कि आप एक बार कंट्रोलिंग कर देते हो, इट्स नॉट कि आपको दोबारा ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एट एवरी लेवल, एट एवरी पॉइंट यू नीड टू जज द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो कंट्रोलिंग इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. कंट्रोलिंग इज़ बोथ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. जो कंट्रोलिंग है वो स्टार्टिंग में की जाती है प्लानिंग के थ्रू, और इन द लास्ट ऑब्वियसली यू हैव टू डू द कंट्रोलिंग. सो दिस इज़ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग इज़ रिलेटेड टू रिजल्ट्स. In the controlling you have to judge the results, means you have to make the comparison of actual with the desired one. So यहाँ पर हम अपने जो results हमने find out किए हैं उनको judge करते हैं. Next we have the importance of controlling. As I can say, this is the last but not the least function of management. In each and every aspect of the management, controlling is required. How it is important for us? The first is accomplishing organizational goals. In the planning you set the goals, and when you are setting your goals you have to take some points कि गोल ऐसा हो जिसको हम अचीव कर सकें, गोल ऐसा हो जो डिज़ायरेबल हो. सो इन द कंट्रोलिंग वी हैव टू चेक कि जो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्ट हमने एक्सपेक्ट किए थे, जो हमने एक्सपेक्टेशंस थी हमारे कि दिस विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, आई विल अटेन दिस ऑब्जेक्ट डेफिनेटली, दैट इज़ टू बी अचीव्ड बाय अस और नॉट. सो दिस इज़ इन द कंट्रोलिंग. Second is judging accuracy of standards. Accuracy of the standards which we set in the planning, they are accurate or not, that can be judged only with the help of controlling. कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जर्नल एग्जाम्पल लूँ, एक स्टूडेंट ने अपना ऑब्जेक्ट सेट किया दैट ही वॉन्ट टू अटेन 95% मार्क्स इन बोर्ड क्लास. सो ही सेट हिज स्टैंडर्ड एज 95. He works during the year, and at the end of the year he will be able to attain only, you can say he attained only 90% marks. So the 5% is the difference between the desired and the actual. तो यहाँ पर अब वो ये जज करेगा या ये चेक करेगा कि उसने 95% का जो अपना स्टैंडर्ड सेट किया था वो एक्चुअली उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग था या नहीं, वो एक्चुअली उसको अचीव कर सकता था या नहीं, या उसने एक दूसरे की कॉपी की सेंस में उसने अपना स्टैंडर्ड इतना सेट कर लिया कि जो उसकी लिमिटेशन से या उसकी एफिशिएंसी से बहुत दूर था. सो दैट इज़ कि यू नीड टू चेक द स्टैंडर्ड्स एक्यूरेसी ऑल्सो इन कंट्रोलिंग.
The next is making efficient use of resources. The resources, there are two kinds of resources, in the organization, human and physical resources. So the human and physical resources, they are to be utilized by the organization with the help of proper controlling, so that the wastage should not be there in the organization. Next is improving employees' motivation. The motivation of the employees, we need to motivate the employees with the help of this controlling. कि जो आप कंट्रोलिंग है उसमें आप प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते हो, प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है. इट्स नॉट ओनली अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम प्रोग्रेस रिपोर्ट एम्प्लॉयज़ की भी करते हैं कि दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी और नॉट. सो इफ़ दे आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी, तो हम उनको इंस्पायर करते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं, सो दैट दे विल डू द वर्क विद देयर प्रॉपर एफिशिएंसी. सो दैट कैन बी पॉसिबल इन कंट्रोलिंग. Next, we have ensuring order and discipline. With the help of controlling, you can make complete discipline in your organization, because you are observing, you are judging, you are finding out the results related to each and every activity. तो किसी भी तरह का theft, corruption या delay in work, इस तरह के chances को हम रोक सकते हैं. The last is facilitating coordination in action. You know the meaning of coordination, कि there are different departments in the organization and it is compulsory for the organization to make them work in a proper coordinated, yeah, you can say with cooperation manner. So that can be possible with the help of controlling, क्योंकि यहाँ पर हम हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम जज करते हैं, चेक करते हैं. इट्स नॉट कि सिर्फ लास्ट में ही आप कंट्रोलिंग करते हो. जो जजमेंट है या कंट्रोलिंग है वो टाइम टू टाइम पीरियड में होती रहती है, आफ्टर एवरी मंथ, आफ्टर 15 days, आफ्टर 3 months. इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द बिजनेसमैन. तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 डिपार्टमेंट, वन इज सेल्स एंड द सेकेंड वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, क्योंकि जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट उसी गुड्स को आगे सेल करेगा. सो दे आर इंटरडिपेंडेंट. सो इट इज़ कंपल्सरी टू मेक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग सच डिपार्टमेंट्स. सो इफ़ दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर मैनर, एंड इफ़ एनी काइंड ऑफ डेविएशन इज़ देयर, अगर आपको स्टार्टिंग से ही लग रहा है कि कुछ कमी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन में, तो आप उसको स्टार्टिंग में ही कंट्रोलिंग से करेक्ट कर सकते हो, सो दैट आगे सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े. सो दैट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोलिंग. As you can see, I had cut this topic. The topic is relationship between planning and controlling. As per the revised section, your revised syllabus of CBSE, this section is not the part of your syllabus. So you may cut it with your pen or pencil as you want. So next we have the difference between controlling and planning. This is also not in the new syllabus. Next we have in this chapter one topic only, controlling process. As you can see, there are different kinds of process earlier related to staffing, planning. Same as it is, we have one process related to controlling. This controlling process contains 5 steps. And one more thing, इस स्टेप, हर प्रोसेस के स्टेप को इसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल में दिया हुआ है. When there is a question in the examination, the question is you have to write down the controlling process. It's not कि एक कंसेप्ट या एक स्टेप को बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस करना आएगा. सो यू हैव टू लर्न द स्टेप्स या लर्न द प्रोसेस एज अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट जोन, सो यू दैट you will be able to write down the 5 steps in a proper manner if the question is of 6 marks. So I'll start with the first one. The first step in the process of controlling is setting performance standard. Before doing anything in the controlling process, you have to set your standard first. मतलब जो मुझे अटेन करना है उसका मुझे स्टैंडर्ड सेट करना होगा. So in the first step we will set the standards. The standards can be set by you can say a proper with the help of a proper criteria. So you have to set your standard. Now the standards can be set in 2 terms. One is qualitative, second is quantitative. So it depends on the kind of your organization कि आप अपना standard qualitative set करोगे या quantitative. Now what is quantitative standards? Such kind of standards which are in sense of figures, like production of 10 units कि एक लेबर उसका हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि वो एक दिन में 10 यूनिट तो एटलीस्ट बनाएगा ही बनाएगा. सो एक वर्कर की एफिशिएंसी एक डे में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की है, तो ये हमने क्वांटिटी के सेंस में किया. नेक्स्ट वी हैव द क्वालिटेटिव. व्हेन वी आर सेटिंग द स्टैंडर्ड्स इन सेंस ऑफ क्वालिटी, नॉट इन सेंस ऑफ क्वांटिटी. सो विथ such kind of standards cannot be set in figures.
For example, increasing the morale of the employee. Measuring the morale of the employee is a qualitative standard. It cannot be measured directly. इसको आप कैसे आप मेजर करोगे कि किसी भी एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज हो रहा है या नहीं. If that employee is regular in your organization, if he is working with proper enthusiasm, if there is no dispute of that employee, so we can judge the standard of that employee with the help of such kind of tricks. So this is qualitative standards. Next we have basis of standard. You may cut this topic, this is not beneficial for you. Next we have function and areas of standard. This is again useless thing. Next we have factors to be considered while डिसाइडिंग स्टैंडर्ड्स. कि अपना स्टैंडर्ड सेट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें कंसीडर करनी है. द फर्स्ट इज स्टैंडर्ड शुड बी रीजनेबल. एज आई सेड कि स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जिसको आप अटेन कर सको. इतना टफ, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना हाई नहीं होना चाहिए जिसको आप अटेन ना कर सको. इट शुड बी मेजरेबल. मेजर करने लायक होना चाहिए वो. इट शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट यू कैन चेंज योर स्टैंडर्ड्स. इट शुड बी सिंपल एंड क्लियर. एंड डेविएशन टॉलरेंस, मतलब डेविएशन मतलब जो डिफरेंस आएगा एक्चुअल और जो आपने एक्चुअली और स्टैंडर्ड सेट किया था उसके बीच में, तो वो टॉलरेंस होना चाहिए. मतलब मेरी एक टॉलरेंस लिमिट होती है, मतलब इतना अगर डेविएशन आया आई कैन टॉलरेट. कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने सेट किया अपना स्टैंडर्ड 95% का, तो अगर मेरे 93% आ गए या 94 या 92% आ गए, आई कैन टॉलरेट दैट स्टैंडर्ड, दैट डेविएशन. सो दैट डेविएशन शुड बी टॉलरेंस के लिमिट के अंदर होना चाहिए. This is the first step of controlling process. The second step of controlling process is measurement of actual performance. In the first, you set your standard. Now in the second, you have to measure your actual performance. So actual performance should be measured in an objective and reliable manner. And the measurement is normally done after the task is completed, but whenever possible, it should be done during the performance. ये कह रहे हैं कि हमें परफॉर्मेंस को मेजर करना है. बेसिकली हम जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको लास्ट में मेजर करते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. आप जब कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी पर्सन वर्क कर रहा है उसके मिड में भी आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो. सो हाउ वी कैन मेजर द परफॉर्मेंस? फर्स्टली, when the work is in progress, it should be ascertained that through the medium of supervisor. जब आप परफॉर्मेंस के बीच में मेजर कर रहे हो आपकी परफॉर्मेंस, मतलब आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसके अकॉर्डिंग वर्क चल रहा है या नहीं चल रहा, उसको मेजर करने के लिए आप सुपरवाइज़र को अपॉइंट करते हो. जो सुपरवाइज़र है वो वर्कर्स की परफॉर्मेंस को मेजर करता है कि दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स और नॉट. तो अगर सुपरवाइज़र को लगता है कि ये डिले कर रहा है या बहुत स्लो कर रहा है, तो वो उसी टाइम उन एम्प्लॉयज़ को टॉक देता है जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस सही हो जाती है. नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड वन कि व्हेन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क यू विल मेजर द परफॉर्मेंस. सो वहाँ पर तो ऑब्वियसली आपको सॉरी उसके बाद आपको ऑब्वियसली करेक्शन करनी ही पड़ेगी, बिकॉज जो आपने सेट किया था स्टैंडर्ड एक्चुअली परफॉर्मेंस उससे कम आई है, तो यू हैव टू टेक सम एक्शन फॉर द करेक्शन. Now, following facts should be kept in mind while measuring the performance. The figure regarding work progress should, and as far as possible, be completely true. These figures should be continuously prepared. The standard for the progress should be the same as were adopted at the time of determining standard. And progress measuring system should be quick to point out deviation. ऐसा आपने स्टैंडर्ड सेट किया है जो अटेन कर सकें, जो आपने अडॉप्ट किया था स्टैंडर्ड जब फिक्स किए थे, सेम उसी टाइप से आप उसकी मेजरमेंट करोगे. द नेक्स्ट वन वी हैव द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस कंट्रोलिंग प्रोसेस इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड. पहले आपने स्टैंडर्ड किया सेट, देन सेकेंड में आपने क्या किया, परफॉर्मेंस को मेजर किया. इन दिस थर्ड पॉइंट नाउ यू हैव टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड्स. Now, if there is any deviation between the actual and the standard, means मैंने actually जो attain किया है वो 90 है और standard मैंने set किए थे 95. So there is a deviation of 5. So there are two kinds of deviation. One is the negative, second one is the positive deviation. As I said, there are two kinds of deviation, negative and the positive. How it is negative and how it is positive. For example, my standard is 95 and I will attain या फिर आई अटेंड ओनली यू कैन से 92%. सो दिस इज़ नेगेटिव डेविएशन कि मैंने 95 सोचा था बट मुझे मिले 92. 3% जो कम है, दिस इज़ नेगेटिव.
नाउ द सेकेंड इज पॉजिटिव डेविएशन, कि मैंने 95 का स्टैंडर्ड सेट किया था बट आई अटेंड 98, सो दिस इज़ 3% मोर, सो दिस इज़ पॉजिटिव डेविएशन। दोनों सिचुएशंस में हम रीज़न फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन में नेगेटिव है तो हम रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से मुझे अपने अचीवमेंट से कम मिला, स्टैंडर्ड से कम मिला। और सेकंड में हम इसलिए फाइंड आउट करेंगे कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह कैसे स्टेबल रखें सो दैट वी विल बी इन द पॉजिटिव सिचुएशन। Next we have the fourth step, analyzing deviation. Now you need to analyze the deviation. जो deviation negative deviation आया है उसको analyze किया जाएगा। इस standard being attained, कि आपने जो standard set किया था वो actually attain किया जा सकता था, आपकी capacity के according वो था या नहीं था। इस deviation acceptable, क्या आप उस डेविएशन को एक्सेप्ट कर सकते हो? मीन जो 3% का डेविएशन आया है वो मेरी एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इज स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, कि द स्टैंडर्ड which you set, if there is nothing is wrong within, then you have to find out the cause of deviation will be located. अगर आपको जो भी स्टैंडर्ड आपने सेट किया था वो एक्सेप्टेबल था या नहीं था, तो उस स्टैंडर्ड को एक्सेप्टेबल सिचुएशन में लाना इज द पार्ट ऑफ दिस वर्क। देन वी हैव टू रिवाइज द स्टैंडर्ड। इफ स्टैंडर्ड इज दैट काइंड कि जो अटेन किया ही नहीं जा सकता था, देन यू हैव टू रिवाइज योर स्टैंडर्ड अगेन, कि मेरी कैपेसिटी ही नहीं थी कि आई अटेन 95%, तो मुझे अपना स्टैंडर्ड दोबारा से सेट करना होगा। नेक्स्ट वी हैव डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, कि डेविएशन को टॉलरेट करने की लिमिट होती है ऑर्गेनाइजेशन की। अंडर दैट देयर आर टू इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग, कि इन दिस वी नीड टू चेक कि देयर इज़ अ डेविएशन। सो हेयर, यहाँ पर जो कंपनी के मैनेजर्स हैं, दे हैव टू सेट सम की रिजल्ट्स एरिया। की रिजल्ट्स एरिया मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर should not be involved in the small activities, but they should pay their 100% attention on such key results area. तो यहाँ पर जो की रिजल्ट्स एरिया है वो कम्प्लीटली कंपनी के मैनेजर्स के हैंड में होगा। वो उसके ऊपर पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन करेंगे, वहाँ पर अनफेवरेबल रिजल्ट्स नहीं आने चाहिए। द सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एज पर दिस अ मैनेजर शुड टेक करेक्टिव एक्शन व्हेन देयर इज एक्सेप्शनल डेविएशन, कि अगर डेविएशन इस लिमिट तक आया है जिसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर उस टॉलरेंस लिमिट से डेविएशन ज़्यादा आया है, उस सिचुएशन में कंपनी के मैनेजर्स को इन्वॉल्व या कंपनी की टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कि इफ़ देयर इज़ अ 3% इंक्रीज इन द बैड डेट्स, that should be acceptable by the organization, but that bad debts if increased by more than this 3%, 4, 5, 6 या more than this, then manager should be keep their eyes on such kind of things. तो यहाँ पर हम उन चीज़ों को कंसीडर करेंगे कि एक लिमिट तक हम डेविएशन को टॉलरेट कर सकते हैं, बट आफ्टर दैट इफ़ द डेविएशंस आर मोर देन दैट लेवल, तो हमें कंपनी की टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म या इन्वॉल्व उसमें करना ही पड़ेगा। Next we have advantages of these two principles. By first one is by taking care of important deviation, time और efforts दोनों save होते हैं। The manager remain focused on the important areas only. Delegation of authority is possible because जो less important work है subordinates को दिए जा सकते हैं। And we will locate the problem and find out the solution very quickly. नेक्स्ट वी हैव द कॉजेज़ ऑफ डेविएशन, कि जो डेविएशन है उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। वन इज़ द ह्यूमन कॉज, ह्यूमन की एफिशिएंसी की वजह से, अनसर्टेन इवेंट्स है, लॉकआउट्स हो गए, स्ट्राइक्स हो गए, एनी अदर काइंड ऑफ थिंग्स। द वेरियस हर्डल्स इफ देयर इज ब्रेकेज इन द मशीन, इरेगुलरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड रॉन्ग स्टैंडर्ड। इफ योर स्टैंडर्ड्स आर wrong, you are not able to attain, then this is the cause of deviation. The last step of controlling process is taking corrective action. If you will be able to find out the reason behind the deviation, तो आप क्या करोगे उसके बाद, यू हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन, कि आप अब एक्शन लोगे उस डेविएशन को ठीक करने के लिए. हाउ? रिमूविंग डेविएशन इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस. यू हैव टू, इफ़ योर प्रोडक्शन हैज़ डिक्लाइन जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द मशीनरी, तो आप क्या करोगे, उस मशीन को जल्दी से ठीक करवाओगे सो दैट जो वर्क है वो अपने स्मूथ तरीके से चलने लग जाए. द नेक्स्ट वन इज स्टॉपिंग द रेपिटेशन ऑफ सच प्रॉब्लम इन फ्यूचर.
कि इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा से अराइज ना हो ताकि हम लोगों के डेविएशन नेगेटिव आए. सो यू हैव टू टेक द करेक्ट एक्शन. नाउ सम फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल टेकिंग द करेक्टिव एक्शन. The action should be taken care with proper inquiry. If the standards are wrong, you have to modify your standards. Corrective action should be taken by the managers only. Action should be immediately taken so that the losses can be avoided. If necessary changes will be there in the prices, policies, anything that can be made by the company managers. So this is the last step of controlling process. So I think all the steps are clear to you. Now you have to read out this chapter very carefully. Thank you so much and take care of yourself. Goodbye.